हेलो बच्चों, हाय हाय। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? तो आई होप यू आर वेल। जो स्टार्ट करें, आर यू रेडी फॉर दैट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेगुलेटरी एंजाइम्स। आई थिंक यू माइट बी नोइंग अबाउट दैट। व्हाट इज द रेगुलेटरी एंजाइम? जो रेगुलेट करते हैं एंजाइम को, जिसकी वजह से उनकी रेट को आप बढ़ाया घटा सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज द रेगुलेटरी एंजाइम, है ना। रेगुलेटरी एंजाइम का रेट जो होता है, दैट कैन बी चेंज, राइट, that can be changed. ओके, तो आई थिंक इसके बारे में आपको पता ही होगा कैसे होते हैं। एनी आइडिया? नाउ वी आर लाइव, तो हम स्टडी करेंगे अबाउट द कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। बेसिकली जो होता है एंजाइम, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन से आप उसकी चेंज कर सकते हो। तो वट एवर द एंजाइम आर देयर, दे need some kind of modification. Without modification, you cannot expect any change. So, what we need exactly? We need a donor molecule, right? That provide a functional structure, and that only can be helpful for defining the property of the enzyme. And most of the modification are reversible. This is not a permanent binding. This is not a suicidal binding, right? You can change. For example, if you're talking about the covalent modification, we can see there is a phosphorylation. This is very popular model. Phosphorylation means donor molecule is ATP, and ATP is transferring the phosphate, okay, to the enzyme. For example, you can see glycogen phosphorylase. So what is the function of glycogen phosphorylase? You might be knowing they convert glycogen into glucose. So they maintain a constant level of glucose in our body. So that is a part of energy transaction. ATP is used in the phosphorylation of the enzyme, right? And this is also temporary. So phosphate, whatever the phosphate is attached, they can be removed also. Okay. So that is called as the dephosphorylation. That is the beauty of this covalent modification. There are two enzymes simultaneously available, phosphorylation and dephosphorylation. Okay. तो phosphorylation modification नॉट रिवर्सिबल ऑलवेज, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं phosphorylation by kinases, एक एंजाइम होता है। If kinases is there for the phosphatases, then phosphatases will also be there for the removal of phosphate enzyme, right? Phosphatase will be there to remove the phosphate group. And how this is working? Kinase, what is the function of kinase enzyme? Kinase actually, uh, in the presence of magnesium ion and ATP, they are transferring phosphate to hydroxyl group. You can see here, this is a phosphate group. मैं एक सेकेंड पेन टाइप भी ले लूँ, जस्ट ए मिनट। अभी हमारे पास हो गया। Okay. So what we can see here, is my pen. Pen. Oh, problem. Okay, I'm not finding pen here. So anyway, so kinases is helping in transfer of phosphate molecule in the presence of magnesium, and you can see here hydroxyl group. Over the hydroxyl group, there is the attachment of phosphate molecule. Now phosphatase is working in the reverse direction. S2 is required. That is called as the process of hydrolysis. And in presence of water, there is a breakage of these attachments, these bonds.
and again they are converted into the hydroxyl by removal of this phosphate. Okay, so glycogen phosphorylase की हम बात कर रहे थे. Glycogen phosphorylase is the enzyme that catalyze the release of glucose from glucose. जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, in that case what happens, in that case में ये होता है कि भाई चलो जो रिजर्व है, जो ग्लाइकोजन के रूप में रिजर्व है, they must be removed. So how they can be removed? This is start with the glycogen phosphorylase. अगर आप देख सकते हो तो this is a diagram. There are two end, non-reducing end and reducing end. Okay, so now you can see there is a addition of phosphate molecule, right? And after the addition of phosphate molecule, there is a release of alpha D glucose 1 phosphate from this residue N-1. Okay, so they are reducing the length. So that is the glycogen phosphate. This is a kind of covalent control. Why I am saying covalent control? Because you can see simultaneously the two enzymes are working, right? So there is a phosphorylase kinase which are adding phosphate to inactive phosphorylase B molecule, and now it is converting them into the phosphorylase A molecule. Okay, this is also inactive T state, but two phosphate are attached. Now what you can see, the phosphorylase A become active by ग्लूकोज और पैपिन. ठीक है ना, तो अगर ग्लूकोज की प्रेजेंस होती है तो थोड़ी बहुत तो ये एक्टिव हो जाते हैं एंजाइम, सबस्ट्रेट चाहिए. नाउ यू कैन से फॉस्फोलिपेज ए इज कन्वर्टेड इनटू द आर स्टेट. याद रखना टी स्टेट इतना एक्टिव नहीं होता जितना कि आर स्टेट एक्टिव होता है. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द फॉस्फोलिपेज बी को एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, एएमपी मॉलिक्यूल चाहिए. ठीक है ना, यहाँ पे एएमपी मॉलिक्यूल चाहिए, एंड इन प्रेजेंस ऑफ एएमपी व्हाट इज हैपनिंग, फॉस्फोलिपेज बी एक्टिव आर स्टेट. ठीक, तो ग्लाइकोजन फॉस्फेज, this is a very good example of covalent modification. And where does it phosphorylating? Covalent modification through phosphorylation of serine 14, right? आप देख सकते हो यहाँ पे this is phosphorylase B is less active, and what you can see here, you can see here exactly serine 14 side chain where it contains the hydroxyl. Okay, this is less active. Now this is going to be modified glycogen present in the liver, and then phosphorylase B kinase is there, and then in the presence of epinephrine hormone, calcium level, AMP level is present in the muscle, the phosphorylase A become active. Okay, है ना, phosphorylase A become active. Now they are activating this conversion of glycogen into glucose. So covalent modification is occurring via phosphorylation of this specific amino acid residue, that is serine 14 in glycogen phosphorylase, that converts the enzyme from less active allosterically regulated form B to form more active allosterically unresponsive form, that is A form. So I hope this is clear. If this is not clear, you can message me, and then you can see I have made a list of the covalent modification. This is phosphorylation, and again you can see acetylation. Acetylation, if you see, is a very popular histone molecule. है ना, the histone molecule is acetylated, one molecule is acetyl coenzyme A, and now you can see DNA packing transcription is there, right? So this is because of modification of histone. So DNA unpacking is there, deacetylation is there, है ना. तो ट्रांसक्रिप्शन करना है या कुछ भी करना है तो डीएनए पैकिंग अनपैकिंग होती रहती है. तो डीएनए पैकिंग होगी तो उस समय कोई भी प्रोसेस नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, रेप्लिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं होगा. और अगर डीएनए अनपैकिंग कर रहे हैं तो डीएसिटाइलेशन करना पड़ेगा, राइट. एंड देन नेक्स्ट इज मेरिस्टाइलेशन, जिसमें कि काफ़ी सीएसआईआर में क्वेश्चन आते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन. यहाँ पे होता है क्या, डोनर मॉलिक्यूल इज मेरिस्टोइल कोएंजाइम A, and which protein is modified, there is a
SRC प्रोटीन, आपने नाम सुना होगा, SRC प्रोटीन होती है जो कि स्पेशली मॉडिफाई होती है और ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करती है। विदाउट मेरिस्टाइलेशन या मेरिस्टाइल कोएंजाइम एडिशन सिग्नल ट्रांसडक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको सिग्नल ट्रांसडक्शन हटाना है तो मेरिस्टाइल कोएंजाइम ए को भी रिमूव करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। तो फॉस्फोरिलेशन पढ़ चुके, एसिटाइलेशन पढ़ चुके, मेरिस्टाइलेशन बता दिया आपको, एंड देन नेक्स्ट इज एडीपी राइबोसाइलेशन। एडीपी राइबोसाइलेशन में द एडीपी टर्म इज देयर, मीन्स दिस इज डोनर मॉलिक्यूल। डोनर मॉलिक्यूल के नाम पे ही उसका नामकरण हो रहा है। जैसे एटीपी से फॉस्फेट जा रही है तो फॉस्फोरिलेशन, एसिटाइल कोएंजाइम में जा रहा है तो एसिटाइलेशन, मेरिस्टाइल कोएंजाइम में जा रहा है तो मेरिस्टाइलेशन। ठीक है ना। तो एडीपी राइबोसिलेशन, एडीपी राइबोसिलेशन एनएडी है ना, एनएडी जा रहा है, एनएडी का हो रहा है, तो एडीपी राइबोसिलेशन, एडीपी राइबोसिलेशन आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर भी फॉलो। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं। व्हाट इज एडीपी राइबोसिलेशन, राइट। तो एडीपी राइबोसिलेशन में हम देख सकते हैं कि दिस इज अ रिएक्शन ऑफ एग्जैक्टली कैटलाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम। एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं एडीपी राइबोसिल ट्रांसफरेज। अब एडीपी राइबोसिल ट्रांसफरेज क्या करेगा, ये एनएडी को सबस्ट्रेट के रूप में लेता है, एंड दिस एनएडी एज ए सबस्ट्रेट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर। और ये एडीपी एनएडी ट्रांसफर होता है। ठीक है ना। तो ह्यूमन में देयर इज ए सिंगल टाइप ऑफ एडीपी राइबोसिल ट्रांसफरेज, and that is NAD plus arginine ADP ribosyl transferase residue in protein such as ribose group. Ribose group में इसका ट्रांसफर होता है। You can see the detailed structure. ट्रांसफरेज एंजाइम क्या कर रहा है, टारगेट प्रोटीन है, आर्जिनाइन लगा हुआ है, तो ट्रांसफरेज NAD को ट्रांसफर कर रहा है और ADP राइबोस यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। हम देख सकते हैं ADP राइबोस इज ट्रांसफर ओवर द आर्जिनाइन, यहाँ पे ट्रांसफर। और अगर रिवर्स करना है तो हाइड्रोलेज एंजाइम चाहिए दैट रिमूव दैट दिस बाइंडिंग ऑफ एडीपी राइबो। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, एंड नहीं समझ में आया तो आई कैन शो यू इन द फिगर फॉर्मेट। एक बार फिर से देख लो। एनएडी मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होना है इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, ट्रांसफर। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। एंड एडीपी एनएडी ट्रांसफर हो रहा है, व्हाट कोएंजाइम और ग्रुप इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड, NAD प्लस इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड। और यहाँ पे टारगेट प्रोटीन के ऊपर आर्जिनाइन लगा हुआ तो उसके ऊपर ज़्यादा ट्रांसफर हो रही है। सिमिलरली सेकंड केस में आप देख सकते हो, दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर, NAD इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड ओवर द प्रोटीन। तो जहाँ पे नहीं है ट्रांसफर उसका नाम अलग होगा, और जिस पे ट्रांसफर होगी उसका नाम होगा ADP राइबोसिलेटेड प्रोटीन। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ADP राइबोसाइलेशन, आपको बता दें सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज़्यादा है यूकैरियोट्स में। स्पेशली अगर बात करें तो एग्जैक्टली डीएनए रिपेयर के नाम सुना होगा आपने, तो डीएनए रिपेयर में दिस एडीपी राइबोसिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई सेल ट्रांसफॉर्म होती है, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो रही है, नहीं कन्वर्ट हो रही है, सारा राइबोसिलेशन का खेल है। सेलर डिफरेंट मॉडिफिकेशन, हिस्टोन का क्रोमेटिन स्ट्रक्चर रीमॉडलिंग, इस सब में एडीपी राइबोसिलेशन होता है। एडीपी राइबोसिलेशन एक्चुअली क्या करता है, दे आर मॉड्यूलेटिंग द वेरियस एंजाइम लाइक डीएनए ligase, है ना, they are modifying the DNA ligase, right? Third, terminal deoxynucleotide transferase, alpha and beta DNA polymerase, topoisomerase, calcium magnesium dependent endonuclease. So ADP ribosylation have a number of consequences and they are controlling the number of factors. जैसे आपको बता दिया DNA ligase, third, terminal deoxynucleotide transferase, alpha and beta DNA polymerase, topoisomerase, calcium magnesium dependent endonucleases. ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट कोवेलेंट मॉडिफिकेशन इज ग्लाइकोसिलेशन। ओके, तो ग्लाइकोसिलेशन है, फॉर्मेसिलेशन है, गामा कार्बोक्सिलेशन है, तो ऑल दीज आर आल्सो ए काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, राइट। सल्फेशन है, देन यूबिक्विटिनाइजेशन है। ठीक है ना, तो इस पर हम आएंगे। पहले हम ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं आपको, व्हाट इज एडिनाइलेशन। तो एडिनाइलेशन में होता है कि देयर इज ए
first step is in the catalytic cycle is adenylation of an active beta amino group of lysine residue. Lysine residue जो ईटा अमीनो एसिड का होता है लाइसिन में, वो एडेनाइलेट होता है। एडेनाइलेट में जो एडेनिन ग्रुप है डीएनए आरएनए का, वो एक अलग लिंकेज में जाएगा। यानी जैसे डीएनए लाइगेज है तो क्या करता है, वो कैटालाइज करता है फॉर्मेशन को एक नया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनने के लिए क्या चाहिए आपको, 3 हाइड्रोक्सिल चाहिए और 5 फॉस्फेट चाहिए। तो ये इस स्टेप को एडेनाइलेट करता है, यानी एडेनिन को ऐड करेगा, ठीक है ना। तो व्हाट इज द अल्टीमेटली consequences you can see here in the diagrammatic representation, हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे लाइसिन का बीटा रेसिड्यू है, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रही है। और मॉडिफिकेशन के बाद क्या हो रहा है, यू कैन सी ये मॉडिफिकेशन एडी एडेनिन ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है ना। ये एडी ग्रुप आपका ट्रांसफर हो गया, दिस इज कॉल्ड एज एडेनाइलेशन। तो ये कोवेलेंट मॉडिफिकेशन जो जितने तरह के हमने बताए, उसमें हो क्या रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस है कि conversion of enzyme from one form to another enzyme catalyzed, and also you can see there is a rapid change in the amount of active enzyme, large amplification is possible। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि एक तो एंजाइम को फॉर्मेट चेंज करके कोई भी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट कर सकते हैं, एंड जो एक्टिव एंजाइम है उसमें टाइम नहीं लगता है, दे आर रैपिडली चेंजिंग वन फॉर्म टू अनदर। तो इससे कोई प्रोसेस रुकेगा नहीं, कोई प्रोसेस चलता रहेगा। एंड देयर इज ए लार्ज एम्पलीफिकेशन इन द इनिशियल सिग्नल, सिग्नल जो है बूस्ट होती है, तो इस तरह से सिग्नल ट्रांसडक्शन भी काफ़ी फास्ट होती है। तो अगर आप बात करेंगे रिवर्सिबल मॉडिफिकेशन, reversible modification permit controlled response of metabolic signal. System is always poised for activation and inactivation. System can rapidly activated, सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, सिस्टम को इनएक्टिवेट भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी चलती है। इस पर क्वेश्चन आते हैं फॉस्फोरिलेशन डिफॉस्फोरिलेशन संबंधित कौन से एंजाइम है, जैसे काइनेज है एंजाइम फॉस्फोरिलेशन के लिए और डिफॉस्फोरिलेशन के लिए फॉस्फेटेज। तो कैसे सिग्नल ट्रांजेक्शन पे इस पर काफ़ी क्वेश्चन होता है, और जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ भी इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। तो रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में कौन कौन से ग्रुप मॉडिफाई होते हैं वो याद रखना है आपको। तो फॉस्फोरिल, एसिटाइल, एडेनाइल, मिथाइल, एमाइड, कार्बोक्सिल, मिरिस्टोइल, पाल्मिटोइल, ट्रेनिल, हाइड्रोक्सिल सल्फेट, लिपिड, and there are new entries also in the modification group, that is ubiquitin and sumo। तो ये भी आजकल बहुत हॉट टॉपिक हो गए हैं, यूबिक्विटिनाइजेशन एंड सुमोइलेशन, राइट। ये भी पार्ट है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। तो आपको बता दिया कि ग्लूकोजन फास्फोलेज का इंपॉर्टेंस भी बताया आपको कि व्हाट इज हैपनिंग, ग्लाइकोजन इज गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लूकोज, ग्लूकोजन फास्फेट रिलीज हो जाता है एंड दैट इज पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक साइकिल, ठीक है। तो ये बताइए फास्फोलेज फॉस्फोलेटेड होता है तभी ज़्यादा एक्टिव होगा, एंड दैट इज द डिफॉल्ट लीवर एंजाइम। और आपको ये भी बताया कि फास्फोलेज ए में 2 सब यूनिट होती है, दैट हैज द 2 सब यूनिट एंड दे आर हैविंग द स्पेसिफिक serine residue that is phosphorylated at its hydroxyl group. These serine phosphate residues are required for the maximal activity of the enzyme. The phosphoryl group can be hydrolytically removed by a separate enzyme called as phospholase phosphatase। तो ये फास्फोलेज ए एंजाइम जो फास्फोलेज बी में कन्वर्ट होता है, तो ये पूछता है कभी कभी कि विच वन इज मोर एक्टिव। ये याद आपको याद रखना है कि विच वन इज मोर एक्टिव, फास्फोलेज ए इज मोर एक्टिव और फास्फोलेज बी इज मोर एक्टिव। आप याद रखिए फास्फोलेज ए इज मोर एक्टिव एज कम्पेयर टू फास्फोलेज बी। तो ये इंटर कन्वर्जन होता है बाय द वाटर। Phosphorus is converted to phosphorus B by the cleavage of 2 serine phosphate covalent bond, one on each subunit of glycogen phosphate। तो phosphate रिमूव हो जाएगा, वो लेस एक्टिव हो जाएगा, phosphate अटैच रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो आप ये देख सकते हो, ये 3D स्ट्रक्चर आपको आर एंड टी स्टेट में, तो एक्टिव स्टेट को आर स्टेट बोलेंगे कि टी स्टेट बोलेंगे, ये पूछा जा सकता है। तो एक्टिव स्टेट इज द आर स्टेट, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। आई थिंक कमेंट, हेलो हेलो
रबड़ मुखा है चल रहा है इसमें क्या प्रॉब्लम है तो चल रहा है बाकी तो ठीक ही चल रही है चलिए तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कोई दिक्कत होगी तो आप तो पूछ सकते हैं रेजिस्टिंग प्रोटीन जैसे राइबोज राइबोज ग्रुप में इसका ट्रांसफर होगा चलिए चलते हैं तो ये आर स्टेट काफी एक्टिव है एज कम्पेयर टू टी स्टेट ठीक है क्लियर है डाउट एंड ओके बच्चों हेलो हेलो बच्चों ठीक है हेलो चलिए अगेन वी आर गेटिंग ठीक है थैंक यू फॉर योर पेशेंस चलो देखते हैं थोड़ा सा ये हमने स्टडी कर लिया एंड देन कंक्लूजन क्या निकला फास्फोलेज बी डीफॉस्फोलेटेड फॉर्म है दिस इज लेस एक्टिव याद कर लेना फास्फोलेज ए फास्फोलेटेड फॉर्म है फास्फोलेज बी लेस एक्टिव फॉर्म है याद रहेगा फास्फोलेज ए phosphorylated form phosphorylase B dephosphorylase less active and this is found in the muscle enzyme तो phosphorylase B को reactivate कैसे कर सकते हैं again you can go for the phosphorylation phosphorylase kinase को एक्टिव करना पड़ेगा
phosphorylase kinase is active, then only they can transfer the phosphoryl group from ATP to hydroxyl group of 2 specific serine residue in phosphorylase B. तो आपको यहाँ भी बता दिया phosphorylase B एक्टिव R स्टेट, ठीक है, एंड phosphorylase A एक्टिव R स्टेट। तो यहाँ पे फॉस्फेट अटैच है, ये काफ़ी एक्टिव हो गया, एंड टी स्टेट में आ गया फॉस्फोलिस ए इनएक्टिव टी स्टेट एंड देन एक्टिव आर स्टेट। फॉस्फोलिस बी यहाँ पे एक्टिव टी एक्टिव आर स्टेट से फिर इनएक्टिव टी स्टेट में जाएगा, फिर हाफ इनएक्टिव टी स्टेट देन कंप्लीट आर स्टेट। तो ये टी एंड आर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टी को हमने रेड से दिखाया है एंड ग्रीन को दिखाया है आर। तो आई थिंक दिस विल बी क्लियर हाउ ग्लाइकोजन फॉस्फोलेज इज रेगुलेटेड। तो अगर ये क्वेश्चन कोई पूछता है तो वेरी सिंपल आंसर कि देयर आर सेम एंजाइम प्रेजेंट इन मसल एज वेल एज लीवर। तो ये दोनों में होता है, ग्लाइकोजन भी जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ पे भी ये रहेगा। तो ग्लाइकोजन का इसका अल्टीमेट टारगेट है कि जो भी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है तो ग्लाइकोजन को ब्रेक करो, तो ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा, राइट। जब ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा तो दो फॉर्म आपकी ग्लाइकोजन फॉस्फोरेस के बनेंगे, एक टी स्टेट बनेगा जो कि आर से हमने दिखा रेड से, एंड एक बनेगा आर स्टेट जो कि काफ़ी एक्टिव है आपका फॉस्फोरेस। तो फिर इसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। ये हमने काफ़ी ये पहले भी डिस्कस किया आपसे। फॉस्फोलेज भी आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉस्फोलेज ए देख सकते हो, राइट। तो ये ग्लाइकोजन साइक्लिक एमपी के प्रेजेंस में नाउ cyclic MP converted into the ATP, and then ADP, and then you can see the uh, phosphorylase kinase is active. Now they are converting. Yeah, phosphorylase kinase become active to transfer ATP. ठीक है ना। तो ये phosphorylase kinase पहले एक्टिव होगा, फिर ये ट्रांसफर करेगा ATP ग्लाइकोजन के ऊपर, एंड देन ग्लाइकोजन फॉस्फेट ग्लूकोज फॉस्फेट कुछ फॉस्फेट बनेगा, राइट। इसका रेगुलेशन काफ़ी पूछा जाता है कि जैसे इंसुलिन हार्मोन एक्टिवेट करेगा कि डीएक्टिवेट करेगा। तो यस, इंसुलिन का अप लेवल दिखाया गया है कि ये एक्टिवेट करेगा, ठीक है, फास्फोलेज, राइट। फास्फोलेज बी फॉर्म, फास्फोलेज ए फॉर्म कौन सा एक्टिव है ये आपको याद रखना है। इंसुलिन के प्रेजेंस में क्या होता है, दिस इज एक्टिव। ग्लूकागॉन के प्रेजेंस में क्या होगा वो याद रखना है आपको। एटीपी नेगेटिव है, एएमपी एक्टिवेटर है, ठीक है ना। तो फास्फोलेज बी के लिए ग्लूकोज 6 फास्फेट नेगेटिव, एटीपी नेगेटिव, यहाँ पे आप देखो ग्लूकोज 6 फास्फेट नेगेटिव, एटीपी नेगेटिव, एएमपी एक्टिवेटर। तो एएमपी एक्टिवेटर, और जो कि फास्फोलेज ई के लिए एएमपी एक्टिवेटर है, एटीपी नेगेटिव, ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ये कन्वर्जन होके देन दे बिकम द एक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो अनफॉस्फोरेटेड फॉर्म है इनएक्टिव स्टेट, फॉस्फोरेटेड फॉर्म विल ऑलवेज बी एक्टिव स्टेट, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा अमीनो एसिड है, सेरीन 14 है, जहाँ पे भी सारा इंटरेक्शन होगा, जहाँ पे भी कन्फॉर्मेशन चेंज, ठीक है। तो कोलन मॉडिफिकेशन में एक लाइन में आप जान लो कि दिस इज एग्जैक्टली पार्ट ऑफ रेगुलेटरी एंजाइम। और इस तरह की कम से कम 500 डिफरेंट कोवलेंट मॉडिफिकेशन हैव बीन रिपोर्ट, ठीक है। तो फास्फोरिलेशन आपको बता दिया, राइबोसिलेशन, एसिटाइलेशन, ये सारा हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वाई फास्फोरिलेशन इज अ कॉमन मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन। तो इसका कई रीजन है, तो वो रीजन आप देख सकते हो क्या क्या रीजन है। एक तो फास्फोरिलेशन की वजह से नेट नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी है, काइनेटिकली एडजस्टेबल है, एविडेंस ऑफ एटीपी, एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट हो सकता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन भी पॉसिबल है, मतलब है ना। फॉस्फोरिलेशन रिवर्सिबल हो जाता है, कोवेलेंट परमानेंट बाइंडिंग बॉन्डिंग नहीं बनेगी, तो इसलिए ये बहुत इफेक्टिव है। फास्फोरेज का काम क्या है, रिमूवल ऑफ फास्फोरेट ग्रुप फ्रॉम स्पेसिफिक अमीनो एसिड कैटलाइज्ड बाय प्रोटीन फास्फेट। क्योंकि प्रोटीन काइनेज का क्या है, अटैचमेंट ऑफ फास्फोरेट ग्रुप स्पेसिफिक अमीनो एसिड रेसिड्यू टू प्रोटीन, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे पार्ट को हमने आज डिस्कस कर लिया, राइट, कि कैसे होता है, हाउ द चेंज इज गोइंग टू अकर, विच एंजाइम इज देयर, है ना। तो ये सारा पार्ट डिस्कस कर लिया।
फॉस्फोरेज ए, फॉस्फोरेज बी, फॉस्फोरेज बी लेस एक्टिव क्यों है, वो सारा आपको बता देंगे। तो कल कुछ और पार्ट डिस्कस करेंगे, कल पार्ट डिस्कस करेंगे जाइमोग्राफी के बारे में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।